चलो भाई देखो, सबसे पहले तो डेफिनेशन बता देता हूं मैं। व्हेन ए लाइट रे एंटर्स फ्रॉम denser to rarer medium, when a light ray enters from a denser to rarer medium, then after refraction it is shifted away from normal. It is shifted away from a normal. ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है अपने पास। तो ये अलग डिफरेंट डायग्राम्स नहीं है भाई, एक ही डायग्राम है, उसकी 4 कंडीशंस हैं। तो फर्स्ट आते हैं अपन, व्हेन ए लाइट रे एंटर फ्रॉम denser to rarer medium, then it is shifted away from normal. So I, it is r is more than I. First medium is denser, refractive index is taken as n1 and refractive index is taken n2 of second medium, it is a rarer medium. नेक्स्ट अपन चलें इसमें, यहां से देखो एक बार, if we increase incidence angle, if we increase incidence angle, then angle of refraction also increases. Reason, by Snell's law, n is equal to sin I upon sin r. As we know, n is not depend on I and r. As we know, n is not dependent on I and r. It is only depends on nature and temperature, so that if I increases, then r also increases. Because n is constant, then we can written as a sin I is equal to n sin r. It is constant, so that I is proportional to r. और अपन ये भी कह सकते हैं r is a proportional to I. R is a proportional to I. Is it clear? देखो, R is proportional to I because n is constant. If we increase value of I, then R also increases. For a particular value of I, R becomes 90 degree. For a particular value of I, R becomes a 90 degree. ठीक है? The value of incidence angle in this condition is called critical angle. IC is called a critical angle. तो definition of critical angle क्या हुई? For a particular value of incidence angle, refraction angle becomes 90. It is called a critical angle, and critical angle depends on a refractive index, and as we know, refractive index depends on a temperature and nature, so that critical angle depends on a nature of mediums और refractive index of a mediums. आगे और बता देंगे अपन कैसे आएगा। उसके बाद में नेक्स्ट कंडीशन है, देखो इसमें लिखा है I is equal to IC, तो इंसिडेंस एंगल इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल। इफ वैल्यू ऑफ I increases, then R also increases. अब इसमें चलें, if I is more than IC, then R is more than 90. I is more than IC, then R is more than 90, so that light ray returns into denser medium. देखो एक बार, लाइट रे इंसिडेंस किससे हो रही है? डेंसर से, वापस रिटर्न भी किसमें हो गई? डेंसर में। इट इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इट इज कॉल्ड ए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो समझ में आ गया है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या हुआ? व्हेन ए लाइट रे enters from denser to rarer medium and value of incidence angle is more than critical angle, then refracted ray enters into denser medium. It is called a total internal reflection. There are two conditions for total internal reflection. First, क्या क्या conditions हैं आपको इसी में समझ में आ रहा होगा। Light ray must enters from denser to rarer medium. Light ray enters from denser to rarer medium तभी होगा।
उसके बाद में सेकंड कंडीशन, वैल्यू ऑफ इंसिडेंस एंगल मस्ट बी मोर देन क्रिटिकल एंगल, सो दैट टू कंडीशंस हो गई, वैल्यू ऑफ इंसिडेंस एंगल मस्ट बी मोर देन क्रिटिकल एंगल, एंड सेकंड कंडीशन इज लाइट रे मस्ट एंटर फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, तभी TIR पॉसिबल है, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। क्लियर है यहाँ तक अपने पास TIR कैसे हुआ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इन फर्स्ट कंडीशन इंसिडेंस एंगल इज लेस देन IC, इन सेकंड I is less than IC, in third I is equal to IC, and in fourth condition I is more than IC। बस फोर्थ कंडीशन में TIR होता है अपने पास। आगे शुरुआत समझ में। अब एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे भाई। देखो, by Snell's law, as we know, n is equal to sin I upon sin R. Here n1 it is n2, so that n21 it is taken n21, क्योंकि बाद वाले का फर्स्ट वाले के रेस्पेक्ट में लेते हैं अपन, तो n21 and n2 upon n1 is equal to sin I upon sin R for a critical angle, as we know I is equal to IC and R becomes 90 degree। ये रही भाई, ये डायग्राम इसीलिए है, I is equal to IC and R is a 90 degree, then we get a n2 upon n1 is equal to sin IC upon sin 90, value of sin 90 is 1, so that n2 upon n1 is equal to sin IC। रेसिप्रोकल करें, n1 upon n2 is equal to 1 upon sin IC and n12 is equal to 1 upon sin IC, where n12 is equal to n1 upon n2, or n1 it is denser medium, it is a denser medium, n2 it is a rarer medium। If we can written n12 is equal to n, then n is equal to 1 upon sin IC। यहाँ पर मैं मेथड बता देता हूँ, n को कैसे मेमोराइज करना है अपने पास, कैसे याद रखना है कि किसका किसके रेस्पेक्ट में है, तो बहुत इजी मेथड है भाई अपने पास है। n is equal to n1 upon n2, so that n is refractive index of a denser medium with respect to rarer medium। n is refractive index of denser medium with respect to rarer medium। बस ये इसको याद रखने का मेथड है अपने पास। तो अपन ये लिख सकते हैं, n is a refractive index of denser medium with respect to rarer। क्लियर, ये इसमें याद रखना ना, फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे अपन चलें इसी में। हाँ भाई देखो, n is equal to 1 upon sin IC, sin IC is equal to 1 upon n, and IC is equal to sin inverse 1 upon n। इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि वैल्यू ऑफ IC कितना होगा फॉर एनी मीडियम। क्रिटिकल एंगल कैन बी कैलकुलेटेड बाय दिस फॉर्मूला। इफ n increases then IC decreases।
Na increases, then IC decreases. As we know, value of N is very larger for diamond, so that for diamond critical angle is very small, because for diamond it is 2.42. If we calculate IC, then it is 2.41 degree for a diamond. ये है भाई इसका, तो फॉर डायमंड क्रिटिकल एंगल इज ए 24.41 डिग्री, राइट। अब एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद में फिर आगे चलेंगे। नमस्कार। क्वेश्चन है भाई, फाइंड वैल्यू ऑफ आई सो दैट लाइट रे total internally reflected at surface A B. Find value of I, value of I so that light ray total internally reflected at surface AB. ठीक है, देखो भाई अपने को ये काम करना है इसमें, 1 सेकेंड भाई, चलो। लाइट रे, एयर आप जानते ही हैं, ग्लास एंड वाटर, तो लाइट रे यहां से यहां एंटर होगी, तो वैसे तो आप जानते हैं यूं जाएगी, बट ये कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ आई सो दैट लाइट रे TIR और एट सरफेस AB। TIR अगर होगा देन अपन ये ले लें, दिस एंगल मस्ट बी इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, देन IC हो जाएगा इसका वैल्यू, ठीक है। तो IC इससे फाइंड करें अपन, ग्लास टू वाटर, देन क्या रहेगा अपने पास बोलो, एन डेंसर टू रेयरर, तो NGW इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन IC, इज इट क्लियर, एंड साइन IC इज इक्वल टू N 1 अपॉन NGW, and sin IC is equal to N of glass upon N of water, and sin IC is equal to N water upon N glass. Sin IC is equal to, it is 4/3, and refractive index of glass as we know 3/2. Then कितना रहेगा, sin IC is equal to 8/9। क्लियर यहाँ तक तो। अब अपन चलें, if this angle is IC, then ये R ले लें, R1 ये I1 ले लेते हैं, R1 also equal to IC, अल्टरनेट एंगल हो गया अपने पास, देखो Z हो रहा है अपने पास, then R1 is equal to IC। अब स्नेल्स लॉ इस सरफेस के लिए अप्लाई करें अपन, then we get by स्नेल्स लॉ, बोलो भाई, NGA is equal to sin I1 अपॉन sin R1, sin IC वैल्यू रखें इसमें, N of glass अपॉन N of air, sin I1 अपॉन sin IC, इज इट क्लियर। वैल्यू इसका 3/2, 1 इज इक्वल टू sin I1, वैल्यू ऑफ sin IC कितना है देखो एक बार, 8/9, ये 8/9 क्रॉस मल्टीप्लाई करें, देन sin I1 इज इक्वल टू 3/2 इंटू 8/9, ठीक है। देन I1 या sin I1 इज इक्वल टू 24 अपॉन 18 हो गया इसका वैल्यू, एंड I1 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 24 अपॉन 18। अब देखें तुम्हारे में से कौन बता सकता है I1 का जो वैल्यू आएगा, इज इट पॉसिबल और नॉट। स्क्रीनशॉट पे ले लें, और स्क्रीनशॉट नहीं लें एक बार, और बस ये बता दें कि I1 का जो वैल्यू आएगा वो पॉसिबल है या नहीं है, इतना सा और नो बता दो बस केवल। पॉसिबल राहुल,
और कोई पॉसिबल है या नहीं है? किरण ओला, अजय पॉसिबल, यसी का भी पॉसिबल। अच्छा, एक बार थोड़ा सा आप ध्यान से देखें भाई, 24 को 18 से डिवाइड करेंगे, मोर देन 1 आएगा या लेस देन 1 आएगा? मोर देन 1 आएगा। ये मोर देन 1 आएगा तो साइन में क्या वैल्यू मोर देन 1 हो सकता है क्या, ये बता दो। नहीं हो सकता, मोर देन 1 नहीं हो सकता, सो दैट I1 इज ए नॉट पॉसिबल, इज ए नॉट ए पॉसिबल। I1 पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स क्या होगा अपने पास कि यहां से I1 के किसी भी वैल्यू के लिए इस लाइट रे का TIR इज ए नॉट ए पॉसिबल। आ गया होगा समझ में? सही आंसर दिया है भाई, एक तो येसिका ने दिया है, एक किरण ने भी दिया है, नीलम, मनीषा, नीतू कंवर, इन्होंने सब ने सही आंसर दिया है भाई, नहीं होगा। आ गया होगा समझ में क्यों? इट इज मोर देन 1 विच इज नॉट पॉसिबल फॉर साइन, so that I1 is not possible, then TIR at this point is a not a possible. Clear? अब आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद में अपन आगे चलेंगे। एग्जाम्पल्स ऑफ है TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के एग्जाम्पल्स हैं। फर्स्ट है भाई मिराज, ठीक है। तो मिराज में आते हैं अपन। सबसे पहले तो रफली बता देता हूं कि मिराज होता क्या है। अपन वैसे भी राजस्थान में रहते हैं, तो आप लोगों ने गर्मी के दिनों में कभी रोड पर देखा ही होगा, पानी पानी दिखता है कि नहीं दिखता है अपने पास, बस वही मिराज है। इट इज कॉल्ड ए मिराज, ठीक है। तो होता क्या है कि रेगिस्तान में समर टाइम में अपने पास टेम्परेचर बहुत हाई होता है। तो टेम्परेचर हाई होता है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से अपने को वाटर की प्रेजेंस दिखती है नहीं भाई अपने पास, वो वाटर दिखाई देता है पर है नहीं। इट इज कॉल्ड मिराज। तो अपने पास ये हो जाएगा इन समर टाइम इन डेजर्ट्स, ठीक है ना, ड्यू टू हाई टेम्परेचर, ड्यू टू हाई टेम्परेचर लोअर लेयर्स ऑफ एयर्स, लोअर लेयर्स ऑफ एयर्स becomes rarer and upper layers becomes denser। क्यों? अपने पास अगर आप देखेंगे तो जमीन का टेम्परेचर ज्यादा होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो एयर की लेयर्स जो होंगी हीट लेकर ऊपर की ओर शिफ्ट होंगी। तो जो लोअर लेयर्स होंगी वो तो अपने पास रेयर मीडियम हो जाएगा, अपर लेयर्स होगा वो डेंसर मीडियम हो जाएगा अपने पास, ठीक है ना। तो अपर लेयर डेंसर, लोअर लेयर जो होंगी अपने पास कैसे हो जाएंगी? रेयर, so that total internal reflection take place and due to TIR presence of water can be seen, it is called a mirage। clear? रीजन आ गया समझ में? उसको समझा भी देता हूं, बता देता हूं कैसे होता है। देखो भाई, ये अपने पास डेजर्ट है, तो डेजर्ट में खजूर का ही पेड़ होगा, इतना तो आप जानते ही होंगे, और कुछ हो भी नहीं सकता। ये लो, अब अपन चलते हैं, ये एटमॉस्फेयर हो गया, तो यहां से ये रेयर मीडियम हो गया नीचे वाली लेयर्स, और अपर लेयर जो हैं वो डेंसर ले लेता हूं। अब यहां से लाइट रे, कोई लाइट रे यहां से आई, यूं आ रही है, इनका TIR हो जाएगा, फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो लाइट रे डेंसर से वापस डेंसर में ही चली गई। यहां से कोई पर्सन अगर इसको देखेगा, ठीक है, तो उसको, उस आदमी को ये लाइट रे जो है ना, ये यहाँ नीचे से आती हुई लगेगी भाई अपने पास, नीचे से आती हुई लगेगी। इट मीन्स जो अपने पास ट्री है ना, इस ट्री की इमेज दिखेगी भाई अपने पास, ठीक है, और इमेज दिखेगी इनवर्ट। अब इनवर्ट इमेज दिखेगी, इट मीन्स क्या होगा कि यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ वाटर उसको लगेगा कि नहीं लगेगा, क्योंकि उल्टी इमेज जो है ना किस में दिखती है? वाटर में ही दिखती है अपने पास। तो वाटर नहीं है
बट उसकी प्रेजेंस अपने पास लग रही है तो ये वर्चुअल होने लगता है। इट इज कॉल्ड मिराज। आ गया होगा समझ में, कंफ्यूज नहीं हो। अब आप सोचोगे भाई ये आदमी क्या एयर में है क्या, ऊंट है, वो ऊंट का डायग्राम बनाना नहीं आता है मुझे, है ना, तो वो ऊंट के ऊपर बैठा हुआ है। आगे अपन चलें सेकंड नंबर, डायमंड। देखो भाई, आप जानते हैं ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, आप सब जानते हैं डायमंड जो होता है उसमें ब्रिलियंसी बहुत ज्यादा होती है। रीजन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। डायमंड में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बहुत इजी हो जाता है। रीजन बता देता हूं। रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज वेरी हाई so that IC is very low. Value of IC for diamond is 24.41 degree, so that total internal reflection easily take place for diamond, and due to TIR diamond is looking very brilliant or a brilliancy of a diamond। अब आगे बता देता हूं मैं। देखो भाई ऐसा होता है, डायमंड जब माइन से निकलता है ना तो रफ होता है ना, तो उस समय अपने पास उसमें ब्रिलियंस ज्यादा नहीं होती, ज्यादा नहीं चमकता है वो। उसकी कटिंग एंड पॉलिशिंग होती है अपने पास। एक तो डायमंड साइज में जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना ही ज्यादा अपने पास वो चमकता हुआ दिखाई देगा, तो ब्रिलियंट दिखाई देगा। तो जो कारीगर होते हैं वो उसकी कटिंग एंड पॉलिशिंग इस तरह से करते हैं कि उसमें सभी जगह पर, हर जगह पर अपने पास क्रिटिकल एंगल से अपने पास इंसिडेंस एंगल का वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाए। मतलब ये होगा कि डायमंड में लाइट रे किसी भी डायरेक्शन से एंटर करे, इंसिडेंस एंगल इज मोर देन क्या हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल, सो दैट TIR टेक प्लेस एंड इट इज रीजन ऑफ ब्रिलियंसी ऑफ ए डायमंड। तो डायमंड्स में मैक्सिमम टाइम पर अपने पास लाइट प्रेजेंट रहता है, ये अपने पास ब्रिलियंसी ऑफ ए डायमंड का रीजन है। नेक्स्ट अपन चलें थर्ड, लाइट पाइप, ऑप्टिकल फाइबर केबल। देखो भाई, सबसे पहले आते हैं लाइट पाइप और ऑप्टिकल फाइबर केबल। कंस्ट्रक्शन में है अपने पास, इट इज मेड बाय टू होलो कोएक्सियल, इट इज मेड बाय टू होलो कोएक्सियल ग्लास पाइप से, है ना, ग्लास सिलेंडर्स। इनर लेयर इज कॉल्ड ए कोर लेयर एंड आउटर लेयर इज कॉल्ड ए आउटर लेयर इज कॉल्ड ए क्लेडिंग लेयर। तो सबसे मेथड बता देता हूं। टू होलो सिलेंडर ऑफ ग्लासेज हैं अपने पास, एक इनर है अपने पास और एक आउटर सिलेंडर है। इनर सिलेंडर का जो रेफ्रेक्टिव इंडेक्स है N1 एंड फॉर आउटर इट इज टेकन N2, N1 is more than taken N2, so that inner cylinder is a denser and outer is a rarer. Is it clear? इनर सिलेंडर होगा डेंसर मीडियम रखते हैं, आउटर सिलेंडर जो होगा वो रेयर मीडियम लिया जाता है। इट इज बेस्ड ऑन ए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो लाइट पाइप और ऑप्टिकल फाइबर केबल इज बेस्ड ऑन ए TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। It is used in transmission of telephone signals,
इट इज यूज्ड इन ट्रांसमिशन ऑफ ए टेलीफोन सिग्नल्स एंड इन मेडिकल साइंस या मेडिकल ट्रीटमेंट। सबसे पहले अपन चलें, यहां से लें, इनर लेयर जो होगा डेंसर होगा, आउटर लेयर क्या होगा, रेयरर होगा। लाइट रे यहां से एंटर हुई, इस पॉइंट पर उसका TIR हो गया, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। फिर यहाँ आई, फिर यहाँ पर वापस TIR हो गया, फिर इधर चली, फिर इस पॉइंट पे गई, यहाँ पर TIR हुआ, फिर यहाँ पर TIR हुआ। तो कंटिन्यूअसली ट्रेवल करती हुई अपने पास ये इनर कोर लेयर में ट्रेवल करती है और आगे चलती चली जाती है। तो यूज कहाँ होता है, टेलीफोन सिग्नल्स में। टेलीफोन सिग्नल्स में कहाँ यूज होता है, देखो भाई, पहले टेलीफोन के सिग्नल्स होते थे उनमें वायर खींचे जाते थे पोल्स पे, आजकल पोल पे नहीं चलते हैं, आजकल एक दूसरा मेथड है। आजकल क्या करते हैं, अपने पास आपने देखा होगा कि रोड साइड में लाइनें डालते हैं, है ना, उस पर लिखा हुआ भी रहता है एयरटेल, अपने पास OFC, BSNL OFC या रिलायंस OFC। वो जो अपने पास लाइंस होते हैं उनमें कुछ पाइप्स होते हैं और उस पाइप्स के इनसाइड में अपने पास ऑप्टिकल फाइबर केबल्स होते हैं। तो पतले पतले होते हैं, साइज क्या होती है, अपने जो बाल होते हैं उनकी साइज का होता है, इतने थिन होते हैं अपने पास। आगे अपन चलें, तो एक यूज तो ये हो गया। इसका दूसरा यूज मैं बता देता हूँ भाई। दूसरा यूज होता है अपने पेट के इनसाइड का, अगर अपने पास मान लो कि कोई दिक्कत है तो उसका एक्सरे नहीं होता है भाई, है ना, तो इनसाइड का एक्सरे नहीं होता है तो उसका तरीका होता है एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी में क्या होता है, एक छोटा सा बल्ब होता है, उस बल्ब से ऑप्टिकल फाइबर केबल जुड़े रहते हैं, उस बल्ब को अपने पास मुंह से अंदर देते हैं और वो इनसाइड में चला जाता है। उस बल्ब में एक छोटा सा कैमरा होता है, अंदर क्या दिक्कत है या क्या क्या प्रॉब्लम है वो सारा का सारा कंप्यूटर के मॉनिटर पर अपने पास ऑप्टिकल फाइबर केबल से भेज दिया जाता है और उसको देख सकते हैं कि कहाँ क्या प्रॉब्लम उसमें चल रही है। तो ये इसका सेकंड यूज हो गया। इसके अलावा एक और यूज है, आप घरों में भी देखा होगा, कुछ घरों में पुराने लैंप होंगे, उन लैंप में कभी आप देखना सफेद रंग के पतले पतले सफेद से तार से होते हैं अपने पास। जब लाइट ऑन करते हैं तो वो तारों के लास्ट पॉइंट पर जो है ना, अगर आप देखेंगे लास्ट पॉइंट पर तो लाइट जलेगी, वो ऑप्टिकल फाइबर केबल होते हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर केबल हो गया एग्जाम्पल, एक तो मिराज हो गया, सेकंड नंबर अपने पास डायमंड हो गया TIR का, और थर्ड नंबर क्या हो गया, ऑप्टिकल फाइबर केबल। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद में अपन देखते हैं। क्वेश्चन है, find the value of I so that light ray TIR total internally reflected at plane AB। तो यहाँ पर ग्लास, वाटर, एयर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इस पॉइंट पे होना चाहिए। ये एयर हो गया, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और टाइम इतना ही है, कल आप एक बार इसको सोल्व करके मुझे आंसर बता देना। थैंक यू।